चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो दोनों तो लेंथ हो गया, चेंज इन लेंथ, चेंज जहां हो वो उसका डायमेंशन उसी के बराबर होता है जो फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब इसका डायमेंशन l, इसका भी डायमेंशन l, सो इट इज m नॉट l नॉट t नॉट मींस हैविंग नो डायमेंशन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कोई भी वेरिएबल हो लेकिन डायमेंशन ना हो, जैसे cos थीटा sin थीटा, अरे cos थीटा उसमें लिखा दिए थे लेकिन इसमें cos थीटा डायमेंशनलेस वेरिएबल्स में आएगा, उसमें काट लेना। cos theta is based by hypotenuse and the same numbers are there and so it cancels and hence we get a dimensionless variable, एक ऐसा वेरिएबल क्वांटिटी जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। So this way the types of physical quantities based on dimension. Now let us move to the uses of dimension. Uses of dimension. सबसे पहले हम लोग देखते हैं to check the correctness of the first use is to check the correctness of the given equation. The correctness of the given equation. Given equation. Accuracy check करना। आपको पता है कि v is equals to u plus at फॉर्मूला होता है, हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, t स्क्वायर कर दे रहे हैं और ये चेक करते हैं कि whether it is correct or incorrect। ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट होगा, कैसे होगा? लेट अस चेक इट आउट। कैसे? डायमेंशन से हम चेक करते हैं। हम यहां लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो LHS का डायमेंशन, ईच टर्म इन LHS, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ dimension in LHS? You know it is LT minus 1. So dimension of L is 1 and the dimension of T is minus 1. U का dimension check करते हैं। Dimension of first term in RHS। देखो हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, जैसे इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये पूरे का, ये पूरे का, ये पूरे का डायमेंशन सेम होना चाहिए। Each term is separated by plus or minus. So dimension of first term in RHS is u. It is velocity, so it is LT minus 1. It is correct. Now let us see the third term, second term. So dimension of second term in RHS, आप लोग ही बताइए। एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन का होता है LT minus 2 और टाइम का स्क्वायर है तो t स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या बचा? L. So all the three are not equal. It means the equation is incorrect. I think you have understood that the dimension of each term in LHS and RHS. See, each term यहाँ बहुत ही important part है। हर टर्म का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। इसका डायमेंशन इसके बराबर, इन दोनों का डायमेंशन इसके बराबर, सबका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। यहाँ नहीं है, means what? This proves that from equation 1, 2 and 3, what do you conclude from 1, 2 and 3? We conclude that the equation is incorrect. The equation is incorrect. तो एक्यूरेसी चेक करने का तरीका आ गया। आपको डायमेंशन को इक्वेट करके देखना है कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर डायमेंशन सेम है LHS और RHS का, it means the equation is correct, otherwise it is incorrect. This is one of the use of dimension. तो पहला यूज डायमेंशन का क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन सही लिखा आपने या गलत, ये चेक करना। अब हम ये देखते हैं कि इसी इक्वेशन को अगर करेक्ट कर दें तो डायमेंशन सेम आता है या नहीं आता है। लेट अस चेक इट आउट। नाउ लेट अस टेक दिस इक्वेशन v is equal to u plus at, you know it is correct। तो डायमेंशन के नजर से भी करेक्ट आना चाहिए। देखते हैं dimension of LHS is what? Tell me LT minus 1. This is equation 1. Then dimension of first term
of first term in RHS. You know it is V, U, that is again LT minus 1, equation 2. Dimension of second term in RHS is what? Acceleration LT minus 2 and time T. Again you conclude that it comes out to be LT minus 1. So from 1, 2 and 3 what you conclude is that all the dimensions in LHS and RHS are equal of each term. Hence what is proved that the equation is correct. So this is how we check the accuracy of the given equation. Now let us move to the second use, that is to derive a relationship. Let us derive a relationship between between physical quantities. To derive relationship between physical quantities. देखो आधा साइंटिस्ट बना देंगे, कैसे बनाएगा? लेट्स हम अगर पेंडुलम ले लें, कोई पेंडुलम ले लें और उसको हिलाने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ता जाएगा इसका स्पीड क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, और जैसे जैसे इसका लेंथ छोटा होते जाएगा स्पीड क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। लेट अस चेक द टाइम पीरियड वेदर इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ और नॉट। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो लेट अस डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम whose length is L and G is acceleration due to gravity and T is what? Time period. So T is what? Time period. G is what? Acceleration due to gravity. Due to gravity. And L is what? Length of the pendulum. I think you know what is a pendulum. एक small mass जिसको हम attach करते हैं long threads, inextensible threads. तो देखते हैं ये रिलेशनशिप कैसे डिराइव करें. Let us solve this with the help of dimension. हमने ये तो देख लिया कि टाइम पीरियड किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है. लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है. और किसी एक स्टूडेंट ने कहा सर मास पे भी डिपेंड करता है, भारी होगा तो कम चलेगा और हल्का होगा तो तेजी से चलेगा. लेट अस चेक. हम मास भी ले लेते हैं. टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स? टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, पहला हमने देखा क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Acceleration due to gravity. दूसरा हमने देखा लेंथ ऑफ द पेंडुलम. लेंथ ऑफ द पेंडुलम. हम लोग ये भी प्रूव करेंगे कि मास पे इंडिपेंडेंट है. हम ले लिए कि मास पे डिपेंड करता है मास ऑफ द पेंडुलम, लेकिन बाद में ये प्रूव हो जाएगा कि मास पे इंडिपेंडेंट है, मास पे डिपेंड करता ही नहीं. ये मास फैक्टर में नहीं है, लेकिन हम लोग लेके चल रहे हैं और प्रूव कर देंगे कि मास पे डिपेंड नहीं करेगा. मदद क्या लेंगे? किसका? डायमेंशन का. थ्योरी क्या लेंगे? थ्योरी क्या लेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. लेट अस सी हाउ इट डिपेंड्स ऑन. माना कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ टू द पावर a, g टू द पावर b एंड मास टू द पावर c. मास भी लेंगे, हालांकि मास पे डिपेंडेंट नहीं. चेक इट. इसका डायमेंशन t, इसका डायमेंशन लेंथ है l, एक्सेलरेशन है lt माइनस 2, मास है n टू द पावर c. चलिए ये ले लिए, लेंथ के लिए l लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए lt माइनस 2 ले लिए, पावर b था तो b ले लिए, यहाँ पावर a था तो a ले लिए, यहाँ मास है तो m ले लिए, पावर क्या है? c. सारे पावर्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं. m का पावर क्या है? c. l का पावर क्या दिख रहा है? यहाँ a, यहाँ l का पावर b, a प्लस b.
T का पावर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ -2 है इंटू बी, -2b, पावर से मल्टीप्लाइड, तो ये आया। अब यहाँ देखो इधर मास है ही नहीं, मतलब m का पावर यहाँ क्या है, 0। तो इक्वेट करेंगे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी विल राइट इन शॉर्ट POH, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मास का यहाँ पावर 0, मतलब C इज इक्वल्स टू 0।